Hello, everyone. A very good evening to each one of you. I'm Saili Maru, founder of Finding Back Moments community. Welcomes you on our today's topic, which is very sensitive. And most of you have reached to us. You wanted to know what are the coping strategies of grief, since this pandemic has shattered us emotionally, mentally, and there's a grief. Everybody is grieving some and the other thing. So we are coming up with today's talk where uh, a psychologist who is having a 15 years of experience, who is a post trainer and a corporate trainer, who is specializing in counseling and has done lot of grief counseling during this pandemic. So I would like to introduce our today's speaker, Jyoti Dadlani. Hey, hi Saili. Hi Jyoti. So much for having me here. Yes, welcome to our Finding Back Women's community. And Jyoti, like few days back, we were talking about, our experiences, how, people are going through emotional and mental problem, and why it is so important for us to know what exactly the grief is and how we as a family member or friend can help our near and dear ones to come out of this grief. Because see, it's like it's everybody. I think life में कभी ना कभी कोई एक बार तो हम लोग कोई एक grief से जाते ही जाते हैं. I have also gone through it, and I'm sure everybody कहा कोई एक चीज के लिए. And grief is not that only when you are losing your loved one, right Jyoti? It could be you are losing something which is very near and dear to you. It could be losing your job. That could be a grief, right? It could be, Absolutely. yeah. So Jyoti, we really wanted to know you as a psychologist, your experience in this especially pandemic, कि लोग कितने ग्रीफ में हैं और ये ग्रीफ समझना. बिकॉज ग्रीफ और डिप्रेशन बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं, right? So we want you to enlighten us with exactly grief क्या है, what are the different stages of grief, और कैसे इसमें से हम बाहर आ सकते हैं. Okay, so over to you, Jyoti. I think Saili, thank you, matlab, thank you for having me here. And this is just a coincidence, yeah, we are in black, okay? We are not grieving, guys. Yes. True, very true. I wanted to start, very lighter note because हमारा topic ऐसा है. तो कहीं ये ना हो जाए कि आप ऐसे सोचो कि नहीं हमें ही बैठे बैठे रुला दे. We're not going to do that. That's going to be very enlightening, and I think after the discussion you're going to get, okay, how will I let's say survival. I'll be fine. I can survive. True. That. So the first question, Sally asked me a lot of questions, okay? In that small. Because we really wanted to know. I have seen so many people, it is taking somewhere I feel that, कहाँ ना कहाँ हम लोग ये right word शायद use नहीं कर रहे, या हमारा attitude या approach ये चीज़ के लिए proper नहीं है. Especially I would like to share, when I was also having, going through grief. So people used to say, come on, move on, ये होते रहता है, it's part of life. And let me tell you very honestly, ये वर्ड्स मुझे वो टाइम पे बिल्कुल नहीं जचते थे. लाइक आई यूज टू गेट, अरे ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है ना, इसके लिए आपको पता नहीं है. बट सी, द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू अंडरस्टैंड्स अ लॉट. सो वो मूव ऑन, मूविंग ऑन, ये सब चीज़ें वो टाइम पे डेफिनेटली फॉर मी इट्स लाइक आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू दिस, ओके? बिकॉज एज माई एक्सपीरियंस एंड व्हेन आई एम डीलिंग विथ women, when I'm speaking to lot of women, especially in this pandemic also, the one thing I understood is that, we are not moving with grief, we are moving forward with grief. What is your view, Jyoti? Kylie, you bumped with one more question. I'm going to take one by one. Sure. But because we really wanted to know, ये जो myth है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, and that is somewhere affecting emotional and mental health.
So Jyoti, over to you, please. तो पक्का start Yes. करो. Okay. No, unfortunately, you know, pandemic given us a lot of experiences. हमने कुछ खोया, इनफैक्ट बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सीखा, कुछ पाया. सबसे बड़ा फियर यहाँ पे ये था कि व्हाट इफ आई एम ग्रोइंग ओल्डर अलोन. काफी बच्चे ऑफन हुए, so there were a lot of loss of lives. But when I talk to grief, it is not only losing someone, it is also losing something very important to you. Might be a relationship, you lost your job. A lot of people have lost their job drastically, and और क्लिनिकल इंसेस ऑफ मूविंग ऑल्सो अ न्यू होम. जहाँ पे एक्साइटमेंट होती है, वहीं पे कहीं पुराना छूटने का ग्रीफ वहीं होता है. एंड ट्रस्ट मी, तुम मुझे पूछो कि ओके ग्रीफ का कोई पीरियड होता है 3 महीने में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए, सब मिथ है. एवरीवन ग्रीव्स डिफरेंटली. कुछ अच्छा, आई हैव सीन कपल ऑफ लेडीज. ओके, परसों ही मेरे वन ऑफ माय डियर फ्रेंड लॉस्ट फादर, एंड देन it was 1 month they're supposed to not go out, and वहां पे वो जो मिलने आते थे ना रिश्तेदार, बस एक ही सवाल करते थे, ये कैसे हुआ, अब क्या होगा. एंड द मोमेंट दे यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन, वहां पे आप इमोशन ट्रिगर्स कर रहे हो, और वो आंटी रोती रहती थी, एंड दैट गोना अफेक्ट देयर हेल्थ. तो इट इज एवरीवन ग्रीव डिफरेंटली. कुछ लोग बिल्कुल नहीं रोते. इज दैट मीन दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट ग्रीविंग? नॉट एट ऑल. सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ ग्रीविंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप इसको एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं, एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ और सपोर्ट. और पहली चीज हम सबसे ज्यादा ग्रीफ में करते हैं कि हम आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर हम छोटी सी खुशियां जैसे लेट्स से someone lost a brother, okay, and he used to like ice cream. You also still like ice cream, very small, the dessert, okay, and but उसको अच्छा लगता था ना, तो I feel guilty having it. So this is also called survival guilt. मैं कोरोना घर पे लाया, मेरी वजह I survived, but other have not survived because of me. अब ये भी एक डेवलप्ड हो रहा है अकॉर्डिंग along with your grief. तो ये जो पूरा है which is not easy ना. आप डिफरेंट इमोशंस कर रहे हो, आप अपनी वर्थ को, या मैं क्यों बचा, यहाँ से आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रोए या सिर्फ गुस्सा करें. You might have a different ways of grieving it. Your second question, what is the difference between sadness, grief, and depression? So grief is a direct response of loss, death of loved one, loss of marriage, loss of friend. Depression, on the other hand, it might be related to loss, or it might not have a direct cause. Depression is a long-term, event that is triggered by certain situation. आप trauma में जाते हो, उसके बाद भी शायद आप depression में जा सकते हो. So you know, it might be biological, it might be chemical response, and sadness. And other word I say, it's just adjustment. आप कुछ वक्त के लिए सैड लगते हो, शायद कुछ चेंज हो गया, कुछ छोटा मोटा आपका चला गया. मे बी यू डोंट हैव अ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, माइट यू नॉट गेट दैट मार्क्स, दैट A+. याद है बचपन में जब हमें एग्जाम में A+ नहीं आता था, या 96 नहीं, और सब दोस्तों को मिलते थे, हम सैड होते थे. And that is what sadness is. But eventually, after 2-3 days, after 1 month, we used to bounce back. But अगर sadness भी एक one of the type of depression. So अगर ये negativity आपकी daily life को impact कर रही है, और 2 weeks से ज्यादा आपको ये warning signs दिख रहे हैं, so it might be a high time it turn into the depression. So you have to look out कि आप sad हो, ठीक है, आप grieving कर रहे हो, ठीक है. और मैं ये नहीं कहती कि पूरा 1 हफ्ता करो, 2 हफ्ता करो. Everyone has a different time frame, everyone has a different way of grieving.
The only aspect is how much it is actually affecting your day to day life. क्या आप basic functions कर रहे हो, आप basic आपका taking care कर रहे हो, जो है उसको आप संभाल पा रहे हो, या सिर्फ जो गया उसके पीछे आप दौड़ रहे हो? Okay, so I think Jyoti here, for an example, in a family, okay, there's a loss of a loved one, and a person is grieving. So these are the symptoms the other family members should try to understand कि ये person grieving कर रहा है या ये धीरे धीरे depression में जा रहा है, right? So there are certain symptoms for the audience also. मैं हिंदी में भी कोशिश करूंगी Yeah, तो sure, आप sure. बिल्कुल रिकलेक्ट कर पाओ. जैसे ग्रीविंग में एपेटाइट लॉस होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, और आप अगर देखोगे ग्रीव और डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी नियर बाय है, बट इट्स अ ब्लर लाइन, देन यू हैव टू चेक आउट. रोना, काफी रोना, या इच्छा होना रोने की पर आंसू नहीं आना, Okay. हाँ, ये भी होता है. बहुत बार यू फील लाइक ओके व्हाई द हेल एवरीवन इज क्राइंग एंड व्हाई आई कांट क्राई. नो, इट्स एब्सोल्युटली ओके. जरूरी नहीं होता कि हर बार ग्रीविंग रोके ही करे. I'm repeating again and again. So there is don't think is anything is wrong with you. It's okay. True. It's okay. Absolutely okay. आप अवॉइड करते हो लोगों को, आप अवॉइड करते हो सिचुएशंस को. जैसे अगर किसी का यू नो दैट पर्सन यूज्ड टू लाइक टू मार्केट, तो आपने मार्केट जाना बिल्कुल छोड़ दिया है. तो अब वो वैसी सिचुएशंस, वहां लोकेशंस, वो सारी नॉर्मल चीजें जाना बंद कर रहे हो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ समवन या समथिंग. जैसे अभी रिलेशनशिप लॉस हो गया, तो आप ऐसे नहीं ना कि एक बार धोखा दिया था तो आई विल नॉट. सो व्हेन यू से मूव ऑन, तो वो रिलेशनशिप में भी तो लागू होता है ना कि गिव योर लाइफ अनदर चांस. No one is saying you forget fully. That's okay. You learn as a lesson. Anger, sadness, loneliness, होपलेस फील करना काफी जगह पे. फिर हाइजीन निग्लेक्ट करना, आप आपका बेसिक हाइजीन में नहीं कर रहे. एंड जो आपकी डेली वर्क एक्टिविटी है, अगर आप जॉब कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, जो भी है उसमें आपको बिल्कुल लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना. एंड खुद पे गुस्सा होना, जैसे ना मैं ही क्यों बचा. That survival guilt is more on the anger part. And डिसीज पर्सन पे तुम मुझे छोड़ के चले गए, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. तो ये तुम अगर डायलॉग्स या ये सेंटेंसेस आप देखोगे कि काफी लोग ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. अगर हिंदी में कहूँ तो कोसना कहते हैं शायद, राइट. यू हैव टू हेल्प मी विद माय लिटिल हिंदी. ओके. डिप्रेशन ऑन द हैंड, कुछ मूड या इनहेबिलिटी हो, एपेटाइट हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, आपका ना लेथार्जिक हो जाता है पूरा रूटीन. स्लगिश मूवमेंट्स हो जाती है, फटीक चक्कर भी आते हैं काफी बार डिप्रेशन में, सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आते हैं डिप्रेशन में, फीलिंग वर्थलेस, मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड सिंपल चीजें पे आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हो, तो डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, इनडिसिसिवनेस, अगर आपको सिंपल सा डिसीजन लेना है वो भी आप नहीं कर पाते. वही मतलब जैसे सुसाइडल थॉट्स है कि मैं क्यों जीऊं, इवन इन डिप्रेशन, कि मैं क्यों जीऊं, am I even you know giving a little contribution towards my family or towards my society. तो मैं ओवरऑल मेरा एग्जिस्टेंस ही क्यों है. तो सेल्फ लव की जगह पे सेल्फ हेट, अगर मैं अदर वर्ड में टर्न करूँ तो. एंड ये आपके छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको अंडरलाइन करती है कि डिप्रेशन और ग्रीफ डिफरेंस है. तो अगर आपको लगता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज में या आपके किसी को देखा है, तो उसको प्लीज हेल्प कीजिए. क्यों मोस्टली हम कहते हैं अरे लॉस है तो ठीक हो जाएगा. True. Yeah, that is why my question, like, we understand कि नहीं यार, सदमा लगा है, ये loss हुआ है, so person will take time. So most of the time,
वो ग्रीविंग की जगह पे ये डिप्रेशन में चला जाता है, एंड एज अ फैमिली मेंबर वी नेवर कम टू नो दैट कि इतना बड़ा हो गया करके. सो दैट इज व्हाई माय क्वेश्चन वाज फॉर यू, लाइक ये सिम्टम्स कैसे है और कहाँ पे, व्हाट इज द अलर्टनेस डिफरेंट अदर फैमिली मेंबर शुड हैव, कि नहीं ना अब भी ऐसे लग रहा है कि जाके हम लोग काउंसलर्स को कंसल्ट करें करके. तो ये समझना बहुत जरूरी है. तो अगर मैं मेजर डिफरेंस कहूंगी ना, ग्रीफ इज फोकस ओनली ऑन लॉस एंड डिप्रेशन विल बी फोकस ऑन सेल्फ. ओके. हाँ, तो ये आप जरूर देखिएगा कि ग्रीफ में जो भी वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, जो भी वो कन्वर्सेशन जितना भी आपके साथ कर रहा है, तो ये मेजर देखिएगा, ग्रीफ इज ओनली ऑन लॉस, पर्सन विल फोकस ओनली ऑन लॉस. जहां पे डिप्रेशन में पर्सन विल फोकस ओनली ऑन सेल्फ. ट्रू. आई तो थिंक. वो जो या. ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे आपको वार्निंग साइंस खुद ही दिख जाएंगे. वेरी वेल सेड. आई थिंक ज्योति ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मेजर डिफरेंस कैसे देखे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन वी थिंक दैट कि ओके टाइम लगेगा एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इट्स ओके टाइम लगता है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पर्सन टू कम ऑन कि इन 15 days और 1 month में यू शुड बी completely back to your normal life. इवन इफ यू से ऑल्सो, बहुत बार ऐसा भी है कि हम बाहर दुनिया को दिखाने के लिए वी प्रिटेंड दैट ओके आई एम नॉर्मल, आई एम आउट ऑफ इट, आई एम मूविंग ऑन. बट हकीकत में ऐसा नहीं भी हो सकता है, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियली नॉट लाइक दैट बिकॉज ऑफ यू अदर फैमिली मेम्बर सफर्स, राइट? maybe you are grieving every moment, every day, you are missing your person और बहुत सारा अंदर से हो रहा है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है, बट बिकॉज देर आर सोशल एक्सपेक्टेशंस रहती है कि नहीं यार बस अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कब तक ये चीज़ को लेकर आगे जाएंगे, यू हैव टू मूव ऑन. तो वो मूव ऑन शायद इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, वो इतना जल्दी होता भी नहीं है, और लोगों को शायद दिखाने के लिए हम लोग बहुत बार कहते हैं ओके आई एम स्ट्रांग इनफ, आई हैव मूव्ड अहेड इन लाइफ, बट फिर भी वो इंटरनल रहता है. एंड समवेयर it's not only depression, but it is also triggering the psychosomatic disease. अब ये डिपेंड करता है व्हेन यू टॉक अबाउट साइकोसोमैटिक डिसीज ना. अगर मैं किसी को भी कहती हूँ कि साइकोसोमैटिक या थोड़े बहुत भी डिसऑर्डर्स के हटा देती हूँ, तो वहां से आ जाता है अच्छा मुझे ये है क्या, मुझे वो है क्या. तो until unless you are not being consulted, मैं इस पे कोई भी कमेंट्स नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग होती है. ट्रू. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशंस, तो एक मेजर डिफरेंस आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आप ग्रीफ में ना आप हर तरह के इमोशंस फील करोगे, but in a depression there will be a fixed stage of emotions and you always feel stuck. This is the major difference. Yes. हाँ, तो वो आप देख सकते हैं कि जब आप मुझे कहते हो कि how will we observe, you will see ना, you will just observe the person कि is this you know fluctuating physical symptoms भी होते हैं. डिप्रेशन में जैसे आप when we have a lot of pain here, it also says that you're carrying an emotional burden. तो वो एक तरह का पेन, एक फिजिकल पेन आपको कंटिन्यूटी में रहेगा. The people comes in, मेरे नीज दुख रहे हैं, मेरे पैर के ऊपर स्वेलिंग है. So every pain, back pain, now every pain indicates some psychological. Psychosomatic, yeah. Yes. So that particular thing gonna be stay longer in depression. वहाँ पे grief में maybe your body is tired and you might feel वो fix नहीं रहेगा. It might be fluctuate. Okay, because I think it's a emotion which has lot of other emotions also. बहुत बार maybe you are remembering that person with happiness. So sometimes you'll feel okay, in his or her memory you are feeling very happy. Right? So it's a mixture of emotions. So now Jyoti, just tell me that what are the coping strategies one should have, and family members should help the persons to overcome it. Do you want to know stages first? Yeah, that will be best. Stages पहले बता दीजिए, so it will help us to understand कैसे वो कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल. तो पहला होता है denial. The person is not disappeared. I am not able to accept. मैं accept ही नहीं कर रहा हूँ. और no matter what, कितनी भी सच्चाई करो, but मैं accept नहीं कर रहा हूँ. It is not happening. The person will come back to me.
कहीं ना कहीं से, तो फिर हम कई जरिया देखते हैं, बाबा देखते हैं, कुंडली मिलवाते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, बिकॉज इट साइंस आल्सो सेड दैट 7 सिमिलर पीपल, तो फिर हमारी खोज चालू हो जाती है। तो फर्स्ट इज डिनायल, सेकंड इज एंगर, खुद से, जो गया उससे, और भगवान से. So we get very angry. You face pain of when you face pain of love, instead of you are more frustration because you're helpless, और आप कुछ भी इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते. Even for losing a job, right? The first, Absolutely. maybe a person has given 10 to 15 years in that organizations and suddenly, ऐसे भी बहुत cases ये pandemic में हम लोगों ने देखे हैं, like, you know, the person feels, अरे I have given my blood for this organization since 50 years और अभी मुझे निकाला गया है. So वो denial phase आता ही है. So to the audience, when we are talking about grieving, we are not talking about only the loss of our loved Absolutely. ones. We are talking about all different kinds of losses, which or grief what we are going through in life, some and the other point, right? Yeah. So denial है first, and then second Anger. one is anger है. Anger, and we are going to take bargaining. What if only उसकी जगह पे मैं चला जाता, you know. Now sometimes when of your friend got जॉब लॉस हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी, अरे मैं तो बच गया, बट वहां पे शायद मेरा नंबर नेक्स्ट है. तो यहाँ पे खुशी भी है, यहाँ पे गिल्ट भी है, अरे मैं नेक्स्ट. सो uncertainty is definitely killing us left and right. You might wanted to strike a deal with higher powers. भगवान थोड़े दिन और, अरे मैं, चलो तो थोड़ा बार्गेन करते हैं. तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करते कि बार्गेन कर लो. देन नेक्स्ट इज डिप्रेशन. यहाँ पे सैडनेस आपको 2 वीक्स से ज्यादा, और अब मैंने जो भी आपको सिम्टम्स बताए वो कंटिन्यूटी होते हैं. एंड द फाइनल स्टेज इज एक्सेप्टेंस. And it really take a couple of days, couple of months. As I say, everyone grieve differently, everyone take your own time. So जब acceptance आता है, जब आप reality accept करते हो कि आपने कुछ खोया है, and कुछ भी कर लो ये change नहीं होने वाला है, तब although you are sad, but then you are ready to move forward, and that is truly moving forward. That is what is very important, and the aim of this today's session is also that, you know, see, we are not telling don't grieve, right? We are here to giving like, okay, if I'm feeling that emotions, let me express it whatever way. If I want to cry, if I just want to be isolate for few days, it's fine, right? It's not that only if it continues more than 2 weeks, then it's a time for us, you know, that we can definitely look for a professional help. Am I right, Jyoti? Isolation, I will not say okay because ना grief में खाना नहीं जाता. Okay. बहुत बार आपकी खाने की इच्छा मर जाती है. जब भी आप दुखी होते हो, आप क्या करते हो? पहली बार आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो, बेसिक हाइजीन नहीं, खाना नहीं. So at least have some, you know, family members to take care of you. Even आप बाहर की दुनिया से आइसोलेशन हो रहे हो, but पूरी एटलीस्ट अपनी फैमिली से आइसोलेशन, because they are there, your biggest support, and they are also grieving. Remember, True. you are not only grieving. अगर आपने कुछ खोया है, तो उन्होंने भी खोया है, whom they look up to. So why can't, you know, instead of सारी responsibility मेरे पे आ गई, delegate करो यार. Take as a support system instead. और तुम देखोगे, you know, पैंडेमिक में कह लो या ग्रीफ में कह लो, इंसान अचानक बड़ा बन जाता है, अचानक मैच्योर हो जाता है. एंड मैच्योरिटी इज नॉट रिलेटेड टू एज. जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब आप बड़े बनते हो. तो यहाँ तुम देखोगे, जब आप शेयर करना चालू करते हो कि आपको लगता है ये सब कैसे होगा, द मोमेंट यू आस्क फॉर हेल्प, आपकी फैमिली से बहुत मिल जाता है. No one gonna take a person place who you lost, okay? But responsibility जरूर बरतती है. True. I've seen some wonderful single parents. I have seen
couple of people who have actually went back to job because of their single earning member was not able to earn. So yes, if you're a fighter, definitely you will fight and you will survive. Definitely. I think I can definitely say this because I have been coaching single working mothers also. So I understand that, they really need to move forward. Whatever has happened, they have children and they have to not only survive, but they have to thrive in life. So कहाँ ना कहाँ वो चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है completely। बहुत सारी चीज़ें छूटती नहीं है। इट टेक्स टाइम, राइट? वो ऐसा नहीं है कि आई थिंक लाइफ बहुत बड़ी हो जाती है, वो प्रॉब्लम तो रहता ही है, बट हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर एरियाज और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है व्हेन यू आर वो ग्रीविंग पीरियड से आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हो। बट येस, फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स आई वुड से इट्स नॉट कम्प्लीटली वो जाता नहीं है, बट आपका माइंडसेट और पर्सपेक्टिव वो चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का चेंज होता है। राइट ज्योति? So for those, I mean, coping up is not easy, and in spite of all coping up techniques, which I'm going to tell you, some people say, I lost someone few 18 years back, 10 years back, and I still feel he's with me. Because you want them. It's like, in your subconscious mind, there is a, आपको पता है स्टोरेज रूम, जब हम बचपन में होता था घर में, अभी तो से आई मीन मुंबई, तो मेरे घर में नहीं है, बट व्हेन अगर आप गांव जाते हो, यू इन बंगलोज, यू हैव दैट स्टोरेज रूम। तो मुझे बताओ साइली, स्टोरेज रूम में क्या चीजें रखी जाती थी? जो चीज़ें शायद ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, महीने में साल में एक बार जो हमें लगती थी, दैट विल बी इन। हाँ, महीने में साल में, मतलब कबाड़, अगर मैं हिंदी में ट्रू। सही कहूँ तो वो कबाड़ है। तो कहने का मतलब ये है, उस कबाड़ में आप एक आप आपका एक सेल्फ वहां पे एक पुरानी चेयर पे रॉकिंग पे बैठा है, एंड वो वहीं पे है बिकॉज यू डोंट वांट टू मूव ऑन। जब मूव ऑन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मेमोरी को लेके निकलो वहां से, आप वहां स्टक नहीं हो। कहीं कहीं पे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे वहीं बैठे हो, 5 साल 10 साल पुराना, आप वहीं हो, आप वही मेमोरी रीलिव कर रहे हो। क्यों हम कुछ लोगों का जिक्र करते ही रोना चालू करते हैं? बिकॉज हम वही मेमोरी लिव करते हैं। तो क्या मूव ऑन का सही मतलब होता है उनको फॉरगेट करना? बिल्कुल नहीं। मूव ऑन का सही होता है एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। देखिए, जितना आप वहीं पे बैठोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। Does that mean you're going to marry someone else? No one has a rights to take. It's your own choice. Choice, true. तो लोग क्या कहेंगे इससे अच्छा तो खुद क्या कहते? That's very powerful, Jyoti. I think that is what one has to always, keep in mind, that what I am thinking and what I am looking for. So wonderful that one sentence is very needed, Jyoti. वो moment पे कि लोग क्या कहते हैं, यही चक्कर में हम हमें क्या चाहिए यही भूल जाते हैं, and most of the time it happens. क्योंकि शायद there are 100 people coming to you and trying to console or giving lot of advices, but at the end of the day you are the one who is going to take a decision and who is really need to move forward with those memories. Okay, looking ahead in life, that is very important. So thank you for that, point, Jyoti. And we would really like to know what are the different coping strategies one should, I'm coming to it. because that is very important. Absolutely. The first, अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहो तो मैं कहती हूँ आपका जो भी विधीज है आप कंप्लीट करो। ओके, लॉस ऑफ जॉब के बाद भी तुम्हारा जो भी कंप्लीशन है ड्यूज है वो कंप्लीट करो, लॉस ऑफ रिलेशनशिप के बाद भी, ठीक है। एंड एक अपने आप को थोड़ा सा छोटा सा 2 दिन का ब्रेक दो।
मैं बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ, अगर जाओ किसी और के पास जाओ, कहीं और छोटी सी जगह पे जाओ, जहाँ पे तुम खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाओ। True. उस जहाँ पे वो चीजें होती है ना, वहां पे तब बहुत नेगेटिविटी होती है। आप चाह कर भी कहीं से भी पॉजिटिविटी वहां नहीं रह जाती, बहुत सारी यादें फैली हुई होती है। तो True. आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि भाई 2 दिन का खुद को ब्रेक दो, थोड़ा काम डाउन करो, थोड़ा पीस दो, ये थोड़ा ब्रेक लो, ये ग्रीफिंग से ब्रेक लो। That's very much needed क्योंकि जब भी तुम you are taking that break, you are just being with yourself. So वो थोड़ा टाइम मिलता है हमें खुद से कनेक्ट करने को, what we really want, how we really want to move ahead, वो कुछ सोचने को, या just to be with your own self, that is very important and I think उसके लिए ब्रेक होना ज़रूरी है. और मुझे काफी लोग कहते हैं, अरे हम तो नहीं निकल सकते घर से। तो कोई बात नहीं, छत पे चले जाओ, True. थोड़ा तो निकलो, बहुत मैटर करता है ये थोड़ा सा जो चेंज होता है। देन टॉक अबाउट इट। माइट आपको लगेगा आप रिपीटेशन कर रहे हो, रिपीटेशन, इट्स ओके, जितना निकालना है निकाल लो, जितना रोना है रो लो, जितना गुस्सा करना है कर लो, जितना कर्ज करना है कर लो, बट ये याद रखना 2 दिन करो, 3 दिन करो, पूरे महीने करो, एक दिन फिक्स करो कि हाँ भाई इसके बाद मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम डन विद इट। अदरवाइज इट जस्ट टेक 21 days टू बिकम हैबिट, राइट? तो दोस्त एक बार करो, पूरा कर लो, जो भी करना है, जो भी इमोशंस है पूरे कर लो, कोई बात नहीं, बट खत्म करो। आज इतना रो लो कि कल तुम्हें कुछ भी टच करे, यू विल बी स्ट्रांग इनफ टू गेट बैक, यू शुड एबल टू बाउंस बैक, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। But फिर भी Jyoti, like after few days or few months also, those are the memories it's supposed to come back, or वही maybe we'll feel like to cry. So I feel personally कि okay लग रहा है रोना है रो लो, but then you have to be in your senses also कि मेरा next step क्या होना चाहिए. तो जब आप बोलते हो ना रोना है रोले, दैट मीन्स वो वहीं पे रॉकिंग चेयर में बैठा है, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, इज नॉट टू एक्सेप्टल हुआ ही नहीं है। Okay. दैट इज व्हाई आई स्टे वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज आगे पूरी जिंदगी पड़ी होती, कभी कभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आप पे, है ना? मैं ये नहीं कहती कि रोना गलत है, पर वो हम क्यों नहीं किसी के जाने के बाद हम उसकी अच्छी यादों को लेके चेरिश क्यों नहीं करते? True. अरे रे कम वक्त मिल गया, अरे जितना वक्त मिला उससे ही खुश था। कुछ लोगों ने, वेरी यंग पीपल वी हैव लॉस्ट, ओके, जिंदगी देखी ही नहीं थी, और जितना जिया शायद बहुत अच्छे से जिया। सो व्हाई डोंट वी रिमेम्बर पर्सन एज वंडरफुल cheerful instead of their suffering? True. यही मेमोरी हम जिंदगी भर आगे अपने गले से लगाए हुए चल रहे हैं, एंड ये करना बहुत हार्ड है। मैं ये नहीं कहती तुम करोगे, पर अगर एक बार कर लोगे ना, सर्वाइवल कर जाओगे। True. अलाउ योर सेल्फ टू फील वॉट एवर यू आर। तो रोना है, गुस्सा करना है, हाँ, बस सामने एक बॉक्सिंग बैग लगा लो, फिर गुस्सा कर लो भाई, आजू बाजू वाले भी ग्रीव कर रहे हैं, है ना? तो ये जरूरी नहीं होता कि हम एक टारगेट को लेके ही आप करो, क्योंकि आप फिर सामने वाले को भी उतना ही हर्ट कर रहे हो जितने आप खुद हर्ट। True. टेक योर टाइम, देयर आर नो टाइम लिमिट, एज आई से। टेक एक्स्ट्रा रेस्ट। हम ग्रीफ में भूल जाते हैं, हम मेहमानों में इतने उलझे रहते हैं अनफॉर्चुनेटली कि खुद की बॉडी चिल्ला चिल्ला के रेस्ट मांग रही है। और बहुत सारे बिग डिसीजंस होते हैं, कुछ भी खोने के बाद सबसे पहला डिसीजन होता है ना हमारे इसमें, बहुत क्रूअल सच है, बट आग कौन लगाएगा या अंतिम विधि कौन करेगा, यहाँ से शुरुआत होती है। तो बंदा बेचारा ग्रीव करे कि ये सब सोच, सच्चाई है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोली ज्योति आपने, जो इट्स लाइक जल्दी से कोई सोचता नहीं है, एंड
एज यू राइटली सेड कि यहाँ से डिसीजन स्टार्ट होते हैं. फिर अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टीज डिसीजन आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन आते हैं. सो व्हेन यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजन, टेक योर टाइम, इट्स ओके. That's powerful. I think it is very very much needed because most of the time we feel that कि properties issue है या families issue है, people want to take it a quick decision. But the person जिसे decision लेना है या ये decision से affect हो सकता है, that person is not in that state of Stable mind to mind, think, absolutely. right? So I think at that point the person should be firmly saying that I need my time to take this decision, क्योंकि ये decision पे base आपका पूरा life है. Maybe you have your children, maybe you have your parents. अगर ये टाइम पे इमोशनल होके या कुछ प्रॉपर किसी I का would हेल्प say rather Saili, influencers. यहाँ पे करे. आप बचिए आपके रिश्तेदारों से, आपके influencers से. Yeah, it's always best to take your time, do some research, connect to the right people, professional, and then take a decision. ये बहुत पावरफुल चीज़ है क्योंकि एक बार तो कुछ हो गया, you lost something, बट जिसके बेस पे आगे की जिंदगी निकालनी है वही डिसीजन आप अगर किसी से इन्फ्लुएंस आकर रहेंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे, राइट? दिस इज वेरी पावरफुल, Jyoti, and I think each one of us who are on live or who will be watching this recording later on, ये भले बहुत ऐसे लगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है या इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं, बट येस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी रियली नीड टू ब्रिंग दिस चेंज कि नहीं, मुझे वक्त चाहिए, ये डिसीजन से मुझे बहुत अफेक्ट होने वाला है या मेरे बच्चों को अफेक्ट होने वाला है. आपका पूरा फ्यूचर कभी-कभी Yes. पेंडिंग होता है. And I am not in that state of mind to take a right decision, so I really need that break. And I really need to consult few professionals who can help me. That's really nice because one of the incidents I have come across, so ये बहुत pressure हो रहा था. The lady has lost her husband. और इन लॉज से प्रेशर हो रहा था कि नाउ लेट्स उसका जो ग्रेजुएटी है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका क्या करें. एंड दो दैट लेडी वॉज वेरी एजुकेटेड बट कुड नॉट एबल टू स्टैंड आउट फॉर हर सेल्फ कि आई रियली नीड दैट टाइम. सो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक ज्योति थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट. प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस हुए ना साइली, करेक्ट, या फिर यस. कुछ और डिसीजन. इंडिया में तो चलो शुरुआत करो, सेकंड की तैयारी. ट्रू. हाउ यू विल लिव अलोन, पूरी जिंदगी पड़ी है बच्चों के सामने, बच्चों के बारे में सोचो. अरे पहले उसको अपने बारे में तो सोचने दो. वेरी ट्रू. क्यों आप किसी एक का दुख जो बाहर ही नहीं आया किसी और के दुख से जोड़ रहे हो? और वो जोड़ते भी ऐसा ही है ना. ट्रू ट्रू. तो यार ये बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसको उनका टाइम लेने दो. तुम बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे? Do not get someone along. अरे पहला ही नहीं हुआ, तुम किसी और का बोझा क्यों ढाल रहे हो यार? इमोशनली नहीं होता. तो कुछ डिसीजंस को अपना वक्त दो, और ये शायद इंडियन फैमिलीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. बहुत. एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पे हम लोग इतना सारा चीज़ें देख रहे हैं एंड पता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एंटायर लाइफ पे. तो समवेयर आई फील दैट इवन वुमन शुड स्टैंड आउट और मे बी हुएवर इज लिविंग दैट हैज़ टू स्टैंड आउट फर्मली या पोलाइटली बात करके बताना चाहिए. दैट्स इट्स वेरी नीडेड. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट इज गेट इन्वॉल्व विद इन समथिंग. बिकॉज क्या हो जाता है ना, आप अपना जीवन साथी खो देते हो या आप अपना people have lost their kids also, तो कुछ बचता नहीं है, खालीपन, that emptiness is huge. So get involved in something, talk to new people. Otherwise पुरानी चीजें आपको रिपीट कराएंगे. अरे रे तेरा क्या होगा? अरे भगवान, तुम तो उसको खाना नहीं खिला रहे. The person is surviving, right? तो get involved something जो आप सच में करना चाहते थे. कोविड ने एक बड़ी चीज अच्छी जगह दी, बकेट लिस्ट लगानी. पहले से ही थी, बट एटलीस्ट लोग अभी ये समझते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जी लो. तो वो बकेट लिस्ट निकालो जो माइनर है, जैसे अगर कुछ आपको गार्डनिंग की हैबिट है या कुछ भी हो सकता है. यू वांट टू ऑलवेज वांटेड टू राइड द बुलेट, यू वांटेड टू लर्न इट, कुछ भी हो सकता है. एक सोलो ट्रिप जाओ,
करो, when you are in a calmer and stable mind, na, then you're able to look around and you're able to be better when you're responding or True. reacting. Or maybe you get some good new insights to, move forward, or maybe something which will inspire you to do better. वो एक स्टेट ऑफ माइंड से एक प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा सकता है और आपको. शायद ही आपको कोई समझने वाला दोस्त भी मिल जाए. वेरी ट्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्योति. And be kind to yourself above all, because वो नहीं है तो मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखूंगा, ये छोड़ो. Be kind to yourself. You have been tough a lot. आपने बहुत सारे decisions लिए हैं. Now it is time to you take care of yourself. where हम कहते हैं self care या self love. वो बहुत मिस आउट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रीविंग, एंड समटाइम्स इवन योर पीपल विल नॉट अलाउ यू टू डू सर्टन थिंग्स मे बी. तो कहाँ ना कहाँ ये हमें खुद का, बिकॉज सी इफ़ यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, और अगर आप खुद का ही ख्याल नहीं रख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. सो एज यू राइटली सेड कि सेल्फ केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट कुड बी एंड योर बॉडी नीड रेस्ट. Maybe you are feeling okay, I just want to go down and have a walk of 15 minutes. Do that. Don't hesitate कि लोग क्या कहेंगे और क्या होगा. That घर से बाहर 15 नहीं minutes. निकलना चाहिए, Yes, ये सब yes. छोड़ो. That 15 minutes will also give you something where you can connect to yourself. At least your body and mind will be relaxed, and that is very important. When your body and mind will be relaxed in mode and you will be taking proper care of yourself, you will be able to take the further decisions. That's very, very powerful. And Very rightly said, Sally. Though you because at the end of the day, it's what? Our health, right? And especially I think एक pandemic में if I say ज़्यादा लोगों को समझ में आ रहा है कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी होता है. अर्लियर वी यूज टू फोकस ओनली ऑन फिजिकल हेल्थ, राइट? सो ये अवेयरनेस थ्रू फाइंडिंग बैक एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक यू, we are all trying our best to give this awareness, कि we are whole. It's not only that physical. Your spirituality also matters, your spiritual health, your social life, that is also very important for you to perform well in your life. If कोई एक पैरामीटर रॉन्ग हो गया ना, तो you are not going to perform that well, right? Very true, very true. That's called probably work-life balance. Yeah. And it's like you need everything in a proper balance. सो कोई एक चीज़ कम है, एक चीज़ ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है. लाइफ इज़ अ होलसम, and that is what finding back is also always empowering women, uh, in their self-care program, in their looking after their physical, emotional and mental well-being, so that they can perform well in their personal and professional life. And that has been our aim, and we have been calling speakers every month to speak about their expert areas, and we are so glad to have you in our platform, Jyoti. So I would like to audience, if you think that any of your family member or friend is uh, really needing a grief counseling, don't hesitate. You can always reach out to us. You can always reach out to Jyoti also. If any one of you really want to know more about it, you want to connect one to one, kindly put a message or an email at connect@findingback.com. We will definitely reach to you. With this, Jyoti, I am really like to thank you from the bottom of my heart that coming on this our platform and enlightening us about what exactly the grief is and how to move forward. Thank you so much. And I mean, if you are such an inspiration, I mean, the way kind of work you're doing, finding back, it's such a wonderful. तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही खो देते हैं. सब कुछ ठीक होता है, फिर भी हम खोए हुए ही रहते हैं. True. I think you're doing wonderful and excellent job, Saili. Thank you so much, Jyoti. And I think we being women, when we ourselves go through lot of things,
And we know that we have gone through this. We don't want our fellow buddies to go through this. That is the one intentions we all have, and that's the intentions. When I connect to you, I could see the fabulous work you are doing on counseling. Especially I have read lot of your posts on LinkedIn, and I have attended your programs also. So that's how I felt, yes, it's more connecting with Finding Back Visions. Let me have her on my platform, and we are very glad to have you, Jyoti. So for your entire audience, especially for your Finding Back audience, we have a little bit surprise in it. We are actually launching an anti-anxiety toolbox, Okay. which is gonna give you how to deal with grief, how to deal with depression, how you can do a self-love, self-care, everything else. So if you are interested, you can just contact us, put it in a comment. And if you have any more questions also after dealing with grief or any others, put it in a comment. We are happy to help you out. Yes, yes. Thank you so much for this wonderful association, Jyoti, and this wonderful session. All the best wishes with your future plans ahead. As I know, the books are also going to launch soon. So hopefully, we'll be again calling you on this wonderful platform once again. Thank you so much. Yeah. Thank you. Take care. Bye Bye. bye.